கோயம்புத்தூர் கல்ச்சரல் ஆஃபீஸர்ஸ். நான் டாக்டர் மணிகண்டன் பேசுகிறேன். எப்பவுமே பார்த்தீங்கன்னா சைக்கிளிங் ஓட்டும்போது உங்களை எல்லா விதத்தையும் தயார் பண்ணிக்கணும். சைக்கிளில் எல்லாமே கரெக்டாக இருக்கா, ஏர் செக் பண்ணிக்கோங்க. எந்த பிரச்சனையும் இல்லாத மாதிரி சைக்கிள் இருக்கான்னு செக் பண்ணிவிட்டு சைக்கிளிங் ஓட்ட ஆரம்பிங்க. சரியா? சரி, இன்றைக்கி நியூஸில் என்னென்ன இருக்குதுன்னு பார்த்துடலாம். ரொம்ப நாள் ஆச்சு நம்ம செய்திகள் பார்த்து. ஸோ நியூஸில் என்னென்ன இருக்குதுன்னு பார்ப்போம். அரசியலற்ற அரசியல் செய்திகள். சரிங்களா? மின்சார வேலி போடக்கூடாது. மசனகுடி கிட்ட பார்த்தீங்கன்னா மின்சார வேலி போட்டிருக்காங்க. அதனால் ஒரு கரடி, யானை இதெல்லாம் வந்து இறந்துருக்கு. அது மிக சோகமான செய்தி. என்டிசி ஆலைகள் எல்லாம் திரும்ப திறக்க சொல்லி பிரதமருக்கு எல்லாருமே தபால் அனுப்பியிருக்காங்க. என்டிசிங்கிறது நேஷ்னல் டெக்ஸ்டைல் கார்பரேஷன் சொல்லிட்டு ஒரு காலத்தில் தேசிய பஞ்சாலை. அது வந்து மிக சிறப்பான ஒரு ஆலைகளாக இருந்தது. அந்த ஆலைகளெல்லாம் நிறைய பேர் நல்ல துணியெல்லாம் வாங்கி நல்லா தைச்சிருக்காங்க. அப்போல்லாம் வந்து மில்லு கிளாத்து அப்படின்னா ரொம்ப ஃபேமஸ்ஸு. மில்லில் ஒர்க் பண்ணுறவங்கன்னா கண்ணை மூடிட்டு பொண்ணு கொடுப்பாங்கம்பாங்க. அந்த மாதிரிலாம் இருந்தது. மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு தடுப்பூசி போடுறாங்க. இன்றைக்கி ஒரு சைக்கிள் வாங்கி கொடுத்துருக்குறாரு. சரிங்களா? சைக்கிள் வந்து தடாகம் சாலையில் இருக்கிற ஒருத்தருக்கு அவருடைய மகன் சுபாஷ், மனைவி இந்திரா, அதாவது ஆட்டோ டிரைவர் சம்பத்குமார், அவருடைய மனைவி இந்திரா, அவங்களோட பையன், ஒரே பையன் சுபாஷ். அவருக்கு வந்து 9ஆம் வகுப்பு படிச்சுட்டு இருக்கிறார் ஆர்எஸ்புரம் பள்ளியில். 100 ரூபா பானிபூரி கடையில் சாயந்தரம் வேலை பார்த்துட்டு வந்துருக்குறாப்புல. சைக்கிள் மேலே கார் மோதினங்காட்டி சைக்கிள் டேமேஜ் ஆகிடுச்சு. இவருக்கும் குணமாகிருக்கிறாரு. ஸோ சைக்கிள் முட்டெல்லாம் உடஞ்சங்காட்டி அந்த மேற்கு போக்குவரத்து ஆய்வாளர் பிரதாப் சிங்குங்கிறவர் வந்து அவருக்கு ஒரு புதிய சைக்கிள் ஒன்று வாங்கி கொடுத்துருக்குறாரு. பரவாயில்ல. ஒரு போலீஸ் ஆய்வாளர் வந்து, காவல்துறை ஆய்வாளர் வந்து ஒரு சைக்கிள் வாங்கி கொடுத்துருக்குறாரு ஒரு பையனுக்கு. ஆக்சிடெண்ட்டில் உடஞ்சி போன சைக்கிளை பரிசாக கொடுத்துருக்கிறாரு. ரொம்ப சிறப்பான விஷயம். மறுபடியும் பெருந்தொற்று கொரோனா 224 பேருக்கு நேற்று வந்திருக்குது கோயம்புத்தூரில். கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக தான் இருக்கணும் எல்லோரும். நானே பார்த்தீங்கன்னா பெரும்பாலும் வெளியே போகிறதில்ல. சனி ஞாயிறில் மீண்டும் ஊரடங்கு கொடுத்துட்டாங்க. ரோஸ் மில்க்கு, தோசை எல்லாம் கொடுத்து நிறைய பேர் வந்து தனக்கு ஆதரவு திரட்டுறாங்க. எல்லா ஆதரவும் எல்லா காலத்துலையும் நிற்குமான்னு தெரியல. கேஸ் இணைப்பு 1 கோடி பேருக்கு கேஸ் இணைப்பு கொடுக்குறாங்க. அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தின் புனித துணைவேந்தராக தமிழகத்தை சேர்ந்த ஆர் வேல்ராஜ் என்பவர் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். அவருக்கு வாழ்த்துக்களை தெரிவிச்சுக்குவோம். பள்ளி கல்லூரிகளின் தரம் மேம்படுத்த வேண்டும் சொல்லியிருக்கிறாங்க. முக்கியமான விஷயம். விளையாட்டு செய்திகளை பொறுத்த வரைக்கும் மீண்டும் சிஎஸ்கேக்காக விளையாடுறாரு தோனி. ஸோ இவ்வளோதாங்க நியூஸு. நன்றி, वणक्कम। क्या आपको पता है कि टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में जितने भी मेडल्स बनाए गए हैं वो सारे वेस्ट से बने हैं। लेकिन टोक्यो ओलंपिक्स में वेस्ट से मेडल क्यों बनाए गए, उन्होंने मेडल्स कैसे बनाए और इसके लिए ऑर्गेनाइजर्स ने इतना सारा वेस्ट कैसे कलेक्ट किया। पिछले कई सालों से टेक्नोलॉजी की रफ्तार काफी तेज हो गई है। टीवीज, कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, स्मार्टफोन्स, ये सब एक बेसिक नेसेसिटी बन गए हैं और इनके भी इतने मॉडल्स आ गए हैं कि हमें अप टू डेट रहने के लिए इन्हें अपडेट करते रहना पड़ता है। और इन्हीं इलेक्ट्रॉनिक की बढ़ती यूसेज की वजह से बढ़ रहा है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट यानी ई वेस्ट। द कॉन्वर्सेशन की रिपोर्ट्स के हिसाब से साल 2019 में ग्लोबली 53.6 मिलियन टन ई वेस्ट जनरेट हुआ है।
जिसका अराउंड 17% ही कलेक्ट और रिसाइकिल हो पाया है। और इसी ई वेस्ट में होता है ब्रॉन्ज, सिल्वर और गोल्ड, जिसको एक्सट्रैक्ट करके टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में मेडल्स बनाए गए। एक्चुअली मेडल्स को ई वेस्ट से बनाने का भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन है। ई वेस्ट एक काफी बड़ी प्रॉब्लम है। इससे सिर्फ वेस्ट ही नहीं बढ़ता, बल्कि ई डिवाइसेस के अंदर मौजूद मर्क्यूरी, लेड एंड कैडमियम जैसे हार्मफुल सब्सटेंसेस लैंडफिल में कंटेमिनेट होकर सॉइल एंड ग्राउंड वाटर को पॉल्यूट कर रहे हैं, जो अल्टीमेटली हर साल लाखों बीमारियों का कॉज बनता है। तो टोक्यो ओलंपिक्स के ऑर्गेनाइजर्स ने इस ई वेस्ट को कलेक्ट करने का एक यूनिक आइडिया सोचा। उन्होंने इंट्रोड्यूस किया टोक्यो मेडल प्रोजेक्ट। यह कैंपेन 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2019 तक चला, विच मीन्स 2 years, जिसमें ई डिवाइसेस दैट इज मेजरली मोबाइल फोन्स को कलेक्ट करने के लिए म्युनिसिपैलिटी को बोला गया। और इनिशियली 600 म्युनिसिपैलिटीज ने यह काम स्टार्ट किया। इसमें पूरे जापान में जगह जगह कलेक्शन सेंटर्स बनाए गए, जहां लोग आकर अपना ई वेस्ट डोनेट कर सकते थे। ऐसा पहली बार हुआ है कि नॉर्मल लोग ओलंपिक्स के मेडल्स बनाने में पार्टिसिपेट किए। इस कैंपेन का रिस्पांस इतना अच्छा रहा कि 2019 तक इसमें 1621 म्युनिसिपैलिटीज के साथ साथ कई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी जुड़ गईं। इस प्रोजेक्ट के अंडर 78,985 टन के इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को कलेक्ट किया गया। इस ई वेस्ट को एक्सपर्ट्स रिसाइकलर्स के पास भेजा गया, जिन्होंने स्मेल्टिंग प्रोसेस के थ्रू मेटल को सेग्रीगेट किया, जिसमें से 32 केजीज गोल्ड, 3500 केजीज सिल्वर और 2200 केजीज ब्रॉन्ज तक का मेटल एक्सट्रैक्ट किया गया। और इन्हीं को रिसाइकिल करके बनाए गए 5000 ओलंपिक मेडल्स। ओलंपिक्स की हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हुआ है कि गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज के सारे मेडल्स ई वेस्ट को रिसाइकिल करके बनाए गए हैं। इतना ही नहीं, ओलंपिक्स के ऑर्गेनाइजर्स के हिसाब से इन मेडल्स के रिबन्स भी इको फ्रेंडली मैनर में बनाए गए हैं। इसमें केमिकली रिसाइकिल पॉलिस्टर फाइबर्स यूज किया गया है, जो कि मैन्युफैक्चरिंग में काफी कम CO2 जनरेट करता है। टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में सिर्फ मेडल्स ही नहीं, बल्कि मेडल सेरेमनी के टाइम जो पोडियम यूज हुआ है वो भी यूनिक है। ओलंपिक्स में इन टोटल 98 पोडियम्स को 3D प्रिंट करके बनाया गया है, और इसमें 1.5 मिलियन पीसेज ऑफ रिसाइकिल प्लास्टिक पैकेजिंग का यूज हुआ है, जिसका वेट अराउंड 24.5 टन है। Isn't that amazing? पर एक्चुअली वेस्ट से मेडल्स बनाने का आइडिया कोई नया नहीं है। 2016 में हुए रियो ओलंपिक्स में भी 30% मेडल्स को ई वेस्ट से बनाया गया था। लेकिन टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में ऐसा पहली बार हुआ है कि सारे के सारे मेडल्स ई वेस्ट से बने हैं, और जिस लेवल का वेस्ट रिसाइकिल हुआ है वो सच में अप्रिशिएट करने लायक है। अब नेक्स्ट ओलंपिक्स 2024 में पेरिस में होगा, जहां एनवायरमेंट को लेके ऑलरेडी बहुत अवेयरनेस है। ये देखने लायक होगा कि वो इस इवेंट को कैसे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, और ओलंपिक्स में एनवायरमेंट को प्रमोट करने के लिए क्या क्या नए स्टेप्स उठा रहे हैं। पर यह कहना भी गलत नहीं होगा कि टोक्यो ओलंपिक्स ने उनके लिए काफी मेजर बार सेट किया है। तो अगर आपको इस वीडियो से कोई नई जानकारी मिली तो इस वीडियो को शेयर करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस बारे में बताइएगा, जिससे लोगों को समझ आए कि रिसाइकलिंग को कितने बड़े लेवल पे प्रमोट किया जा रहा है, और बाकी के टूर्नामेंट्स में भी ऐसे इनोवेटिव आइडियाज इंट्रोड्यूस किए जा सके, जिससे वेस्ट भी कम हो और रिसाइकलिंग भी प्रमोट हो। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। सी यू नेक्स्ट वेडनेसडे। हम ऐसे ही एनवायरमेंट अवेयरनेस पे फिल्म्स बनाते हैं, तो अगर आप एनवायरमेंट को लेके थोड़ा सा भी सीरियस हैं और उसे सेव करना चाहते हैं तो आप इको फ्रीक्स नाम के फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें हम ऐसे लोगों की कम्युनिटी बनाना चाहते हैं जो एनवायरमेंट के बेटरमेंट के लिए कुछ कर रहे हो। तो अगर आप किसी ऐसे को जानते हैं या आप खुद कुछ ऐसा कर रहे हैं तो आप इस ग्रुप में जाके पोस्ट कर सकते हैं, सो दैट और लोगों को इसके बारे में पता चले। लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। थैंक यू एंड टेक केयर।